اب اس کے بعد انجینئر صاحب نے پچھلے ہفتے میرے تعلق سے پوری اپنی جو مجلس ہے 2 گھنٹے کی وہ اسی موضوع کے اوپر کی، لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی غالباً منڈے کو، ہماری سٹریم پچھلے سنڈے کو ہوئی، اور مجھے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی، انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس ہفتے ہم گفتگو کریں گے، تو میں انتظار میں تھا کہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی، اور وہ پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس کو یقین نہ آئے پچھلے ہفتے کی سنڈے کی لائیو سٹریم دیکھ لے، بالکل شروع میں اس میں نے کہا تھا انجینئر صاحب کوئی نئی بات نہیں لانے والے، ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ کا جواب دے دو، چشتی رسول اللہ کا جواب دے دو، ان کو یہی کہنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہنے والے نہیں ہیں، وہ مہندی پر بات کریں گے۔ وہی ہوا، چونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سارے ہم نے گن لیے، وہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ خیر جی، وہ 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے بھی ضائع کیے اور اپنے آڈینس کے بھی ضائع کیے حسب عادت۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی جواب دو جواب دو، اور باقاعدہ ان کے کچھ چیلوں کی طرف سے ویڈیوز بھی بنائی گئی، کچھ میمز بنائے گئے، مجھے بڑے اچھے لگے۔ پلیز کیپ دا گڈ ورک۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا دیکھیں تو یہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کبھی کبھی اسٹریم کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ذرا صبر کرو، ٹھہرو، سنڈے آنے دو، تو سنڈے آ گیا۔ آج ہم ایک اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا ہم فرقہ پرستی پر اب بات کریں گے؟ نہیں۔ انجینئر پر بات کرنا، فرقہ پرستی پر بات کرنا کیوں نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو کے ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں۔ پہلے جو 2 سیگمنٹس ہیں ان کو پریزنٹ میں کروں گا، اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب، جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا۔ بیک اسٹیج وہ موجود ہیں۔ یہ 2 سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں، چائے وائے لے کر بیٹھیں، ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے، کافی شافی لے لیں، تھوڑا ٹائم دیں، اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بایسنس کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے، تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا، اندھے کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا، یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے، بس آنکھیں بند ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی، یعنی نابینا نہیں ہوں گے، اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا، تو پلیز بیئر ود می۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، جسٹ اے سیکنڈ۔ اوکے جی، یہ آپ کی اسکرین پر۔ اچھا عاطف ریان صاحب، اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا، اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ۔ جی حضرت نظر آ رہا ہے۔ اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، that's fine۔ اچھا جی، تو انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا، آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا، تو چلو کوئی بات نہیں، عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا، ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے، اسی کو قبول کیا جائے۔ ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں کہ the aim of this presentation is solely to correct and enlighten engineer محمد علی and his followers۔ ہم صرف آپ کو، آپ کی اصلاح چاہتے ہیں،
इसी तरीके से आपको कुछ इल्म देना चाहते हैं, कुछ जरा इल्म की रोशनी आप तक पहुंच जाए, मकसद सिर्फ यही है. We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses. ये वजह है कि हम इंजीनियर मिर्जा को मौजूद बहस बना रहे हैं कि वो दरअसल एंटी इस्लामिक ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतों को कामयाब होने में मदद दे रहे हैं. कैसे मदद दे रहे हैं ये आगे इंशाअल्लाह साबित होने वाला है. आगे जो गुफ्तगू हो रही है वो एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द रैंड कॉर्पोरेशन, जो 1948 में कायम हुआ. उसका तकरीबन जो सालाना बजट है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. $319 मिलियन का शायद 2 साल पुराना बजट है, विकिपीडिया पर उसकी इंफॉर्मेशन है. ये रैंड कॉर्पोरेशन एक ऐसा थिंक टैंक है जो हुकूमतों को तजावीज देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मैदानों में. उनमें एक मैदान है सिक्योरिटी और इसी तरीके से दूसरा मैदान है हेल्थ केयर. तो 2004 और उसके बाद 2007 में इन्होंने 2 रिपोर्टें स्टेट डिपार्टमेंट या होमलैंड डिपार्टमेंट को में जमा की. होमलैंड डिपार्टमेंट यानी जो अमेरिका की समझ लीजिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला है, वहां पर इन्होंने ये रिपोर्ट जमा की कि आपको किस तरीके से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं इनके नजदीक, उनको आपको टैकल कैसे करना है. जाहिर है कि बंदूक के जरिए, बमों के जरिए आप सबको तो मार नहीं सकते, बहुतों को मार दिया, लेकिन सबका क्या करें. तो अब माइंडसेट बदलना है. ये माइंडसेट कैसे बदलना है, उसके लिए कुछ तजावीज दी गई थी. मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है. यही वजह है कि वो रैंड रिपोर्ट के जिसका मकसद मुसलमानों से रिवायत को खत्म कर देना है, उनके रिवायत के तसलसल को तोड़ देना है और उनके दीन को उनके दिल तक के महदूद कर देना है, उस रिपोर्ट से जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा, उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है. इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है. यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते. इस तरह के बहुत सारे लोग हैं. लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं. लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए. ये जो 2 आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट थी रैंड कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है. पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज. यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स. इसमें जो समरी है, पेज नंबर, समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है. पेज नंबर 1 पर देखें क्या लिखा है इस 2004 की जो रिपोर्ट है. और ये वाज़ेह रहे कि 2004 की रिपोर्ट 9/11 के 2-3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है. तो 9/11 के बाद की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसमें मगरिब के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे. पहला चैलेंज था मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई उनके मुताबिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा जो चैलेंज था वो था अफगानिस्तान. ये 2 चैलेंजेस उनके सामने थे. और आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्टर्न्स में उनको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है, और कैसे अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है. तो आप देखें, ये कहता है पहले पेज पर कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट कंटेम्परेरी इस्लाम इज एन ए वॉलेटाइल स्टेट, कि आज बड़ी इस्तराबी कैफियत में है मौजूदा इस्लाम. engaged in an internal and external struggle over its values. अंदरूनी महाज के ऊपर भी और बैरूनी महाज पर भी जो अखलाकी अकदार हैं इस्लाम की, उसमें स्ट्रगल जारी है. इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड. इस्लाम में यह स्ट्रगल जारी है कि भाई हमारे तशख्खुस क्या होना चाहिए और इस जदीद दुनिया में हमारा क्या मकाम होना चाहिए.
आगे है, the West is making an increased effort to come to terms with, to understand and to influence the outcome of this struggle. तो मगरिबी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को समझे और कैसे इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर हो. इन्फ्लुएंस, जाहिर है क्या वो इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर होने के लिए उसको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए. इन्फ्लुएंस तो होना है. अब वो इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, आगे देखिए. क्लियरली द यूनाइटेड स्टेट्स, द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. अमेरिका, जदीद सनाती दुनिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इस्लामी दुनिया जो दुनिया में राइज दूसरे जो निजाम है उससे कंपैटिबल हो. वो निजाम क्या है? डेमोक्रेटिक, यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव. ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है? सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए. प्रोग्रेस तो जब ही होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे. ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं. आखिरी दो लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इनकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हो, उनकी बात करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो. ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है. इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है. पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं. मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें. नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट. ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर. जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं. इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं. दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं. अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल. ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए. पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का. दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का. दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी. कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं. दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज. वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं. ये ट्रेडिशनलिस्ट है. इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है. अब आके बचे 2 ग्रुप. मॉडर्निस्ट. ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद. वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी. ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए. दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट इनटू लाइन विद द एज. ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक. चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट. वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट. ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए. बिल्कुल इसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज. रिलीजन आपका with religion relegated to the private sphere, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे. ये सेक्युलरिस्ट होते हैं. अब इंजीनियर साहब क्या है? खुद ही उनकी जबानी सुनिए.
کہ وہ کیا ہیں. اس کلپ کو ذرا غور سے سنیے گا. پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو اس کی برکات دیکھ لیں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ. اس میں ریلیجن کا کوئی قصور نہیں ہے, کم انہوں نے فالو کیا. ورنہ مجھے بتایا کہ اس وقت دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو امن کی صورتحال میں دیکھیں, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو پھر اسلامی ملک ہے, وہاں کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو اٹھا کے نا ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا. جب تک ہم اپنے مولویوں کے لیے کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا, ان کے شر سے اس امت کو نہیں چھٹکارا دیتے, اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں ہونا. آپ کیا جی تو سن لیا آپ لوگوں نے, جب تک ہم مولویوں کے لیے ویٹیکن سٹی نہیں بناتے, جس طریقے سے یورپ نے پوپ کو اٹھا کر ویٹیکن میں بٹھا دیا اور چرچ اور ریاست کا سیپریشن کر دیا, ایسے ہی یہ ضروری ہے کہ مسلم ریاستوں میں بھی علماء کو ویٹیکن جیسی جگہ میں بٹھا دیا جائے کہ تمہارا حکومت وغیرہ چلانے سے کیا تعلق ہے, مسجد اور ریاست کے درمیان تفریق ہونی چاہیے. تو بھائی جب ہم کہتے ہیں ہم کیا, یہ تو رینڈ رپورٹ والے کہہ رہے ہیں نا سیکولرسٹ کون ہوتا ہے, تو آپ جو کہہ رہے ہیں دراصل سیکولرسٹ, رینڈ رپورٹ کی سیکولرسٹ کے مطابق ان کا جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں یہ کیوں الزام لگاتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو رینٹ کارپوریشن والے پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ الزام میں کبھی نہیں لگا رہا ہوں. یہ الزام ایک سنگین الزام ہے اور میں اس وقت تک نہیں لگاؤں گا جب تک میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا کہ انجینئر صاحب کتنے مالدار ہیں, کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں, اللہ عالم. میں ایسا کبھی الزام نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میرے پاس ثبوت نہ ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ریپیٹ, کہ رینٹ کارپوریشن کا کی جو ڈسکرپشن ہے وہ انجینئر صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے. تو جو سیکولرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ویڈیو سن لی ہے کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ضرور سنیں, بہت امپورٹنٹ ہے. جمع ہوا تھا وہ نکل آیا. باقی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے حجاب کروائے. ہم تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہیں. نہ داڑھی رکھوا سکتی ہے اسٹیٹ, نہ حجاب کروا سکتی ہے. اسٹیٹ کا کام ان معاملات کے ساتھ, تو جی اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کروائے. یعنی اگر خاتون بغیر حجاب کے سڑک پر چل رہی ہے تو اسٹیٹ اس عورت کو, یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت کی, تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے. مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی ایک حکم ہے, لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے, یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے, وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے, اس سے مذہب کو کوئی لینے دینے نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے. سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere, کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے, ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہے, وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, اب آگے کیا ہے, ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے, ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے, رینٹ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی
ऐसा तो नहीं है कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और चंद लोग आज उठकर खड़े हो जाएं और ये कहें कि नहीं, हमें तो जो ओल्ड टेस्टामेंट की लफ्जी तशरीह है हम तो उसके ऊपर अमल करेंगे, लफ्ज बलफ्ज जाहिर के ऊपर अमल करेंगे, तो क्या उसकी वजह से वेस्ट ने जाहिर के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया? नहीं. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी का जो असली पैगाम है, जो उसके जाहिरी पैगाम से पर गालिब है, हमने उसको इख्तियार कर लिया. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. यही वो अप्रोच है जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट भी लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई कुरान और हदीस के जाहिरी लफ्ज बलफ्ज पर नहीं जाना, बल्कि हमें उसकी तशरीह इस तरीके से करनी है कि वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ उसकी मुताबकत हो जाए. अच्छा, अब और पूरी इंजीनियर की जो डॉक्ट्रिन है ना, ये इसी के ऊपर मबनी है. यही वजह है कि कभी वो डेमोक्रेसी की हिमायत करता हुआ नजर आता है, कभी वो आयरन डोम को हफीज़उल्लाह कहता हुआ नजर आता है, कभी वो गुस्ताख रसूल की सजा की मुखालफत करता हुआ नजर आता है, कभी वो कादियानियों के हक में बोलता हुआ नजर आता है. क्यों? ये सारे के सारे दरअसल मॉडर्निज्म, यानी जो मॉडर्निस्ट का अप्रोच है या सेक्युलरिस्ट का अप्रोच है. पेज नंबर 48 पर तजावीज है कि इस तरह के लोगों को की मदद कैसे करनी है. तो ये अमेरिकन हुकूमत को कहा जा रहा है कि कैसे करना है. इसमें कहा जा रहा है कि हेल्प ब्रेक द फंडामेंटलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट मोनोपोली ऑन डिफाइनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग इस्लाम. बहुत अहम जुमला है कि बुनियाद परस्त और जो रिवायत पसंद हैं, उनकी जो मोनोपोली है इस्लाम की तशरीह के ताल्लुक से, उसको खत्म करने में ऐसे लोगों की मदद की जाए. इंजीनियर का पूरा डॉक्ट्रिन क्या है कि भाई ना मैं कहता है ना मैं वहाबी और ना मैं बाबी, और बाबी कहने की यानी वहाबी ना कहकर उसने कहा भाई मैं सलफी नहीं हूं, मैं अहले हदीस नहीं हूं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह रिवायत परस्त है. बाबी कहकर उसने तरदीद कर दी कि भाई ना मैं दियोबंदी हूं ना बरेलवी हूं, चूंकि वो भी रिवायत परस्त पसंद है. फिर क्या कहा, यानी अब अपनी मोनोपोली कायम करनी है और जो एक रिवायत, अहले रिवायत का जो तसलसल चला आ रहा है उसको खत्म करना है. अब इस खत्म करने में मदद कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर फिट हो रहा है, ये तय है. आप जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो पेज नंबर 48 की तजवीज नंबर 1 में रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया था. उसके बाद आगे आता, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू मैनेज ए वेबसाइट दैट आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली कंडक्ट एंड ऑफर्स मॉडर्निस्ट इस्लामिक लीगल ओपिनियंस. कि ऐसे मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई भी किया जाए कि जो, ताकि वेबसाइट उनकी चला दी जाए सही से, वो वहां सवालों के जवाब दें, इस तरह के जवाब दें जो जरा हमारा जो एजेंडा है उससे मुताबिकत रखते हो. इनकरेज मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू राइट टेक्स्ट बुक एंड डेवलप करिकुलम. आप इनको टेक्स्ट बुक मदद करने में, टेक्स्ट बुक लिखने में आप इनकी मदद करें, इनको तरगीब दें. रिसर्च पेपर लिखने में मदद करें. पब्लिश इंट्रोडक्टरी बुक्स एट सब्सिडाइज्ड रेट. इनको आप किताबें इनकी छपवाएं सब्सिडाइज रेट पर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेलेबल हो. यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जबरदस्त. यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जो रीजनल मीडिया है उसको, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका इस्तेमाल करें इन लोगों के हक में. सच एज रेडियो, उस जमाने में रेडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इंटरनेट अभी इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ था. टू इंट्रोड्यूस द thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. तो भाई जो पूरा ताउन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरह मिल रहा है ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन ने जो तजावीज दी हैं, उन तजावीज देने के 5-6 साल के बाद आप पैदा हो गए थे. यानी 2007 का जो वर्जन है आपकी, जो खुद ही आप कहते हैं कि जी 2008-9 में आपने शायद अपनी इस तहरीक का आगाज किया है, तो उसके 2-3 साल के बाद आपसे राब्ता हुआ होगा, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिन्होंने राब्ता किया है. मैं वो इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा मैच कर रहा है. अब आ जाएं एक जबरदस्त बात के ऊपर. ये बात वाज़ेह रहे कि अगर ये स्लाइड या इस तरह की कोई स्लाइड इंजीनियर दिखा रहा होता, तो वो इतनी ईमानदारी के साथ इसको न दिखा रहा होता जितनी ईमानदारी के साथ मैं दिखाऊंगा. और इनकी बेईमानी अगले सेगमेंट में किस तरीके से ये हवाले में धोखाधड़ी करते हैं, ये अगले सेगमेंट में आ रहा है. तो पेज नंबर 7 में रैंड कॉर्पोरेशन में, रैंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म.
کہ جو ٹریڈیشنلزم کے الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں ان میں ان کو لڑواؤ آپس میں، ان کو آپس میں لڑواؤ، ان کے خلاف محاذ آرائی کرو، ڈسکریمنیٹ کرو جتنے بھی آپس میں ٹریڈیشن، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں. تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں، بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں. اسی ویڈیو میں جو انہوں نے میرے خلاف بنائی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ کوئی ہیں، آخر دیوبندی بریلوی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے، اور بریلوی دیوبندی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے کہ تم واجب القتل ہو. آپ انکریج کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یعنی جو ابھی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات کو سن کر یہ کرنا چاہیے. یہ وائلنس کو انکریج کرنے کے باوجود یوٹیوب کی الگوریدم نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور انجینئر کے چینل کو بند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ بھائی سپورٹ تو اوپر سے، آپ تو رینٹ کارپوریشن کا کام کر رہے ہیں. تو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم ایمانداری کے ساتھ پوری بات رکھتے ہیں. لیکن آبویسلی بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. انکریج دوز ود اے گریٹر ایفینٹی ٹو ماڈرنزم سچ ایز دا حنفی لا اسکول. یعنی ان لوگوں کو انکریج کریں کہ جن کا ماڈرنزم سے ذرا قریبی کنیکشن ہے، جیسا کہ حنفی لا اسکول. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ کل کو مجھے معلوم ہے کہ انجینئر خود یا ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی انجینئر صاحب تو حنفی ہے ہی نہیں. تو میں بتا دوں کہ یہ رپورٹ 9/11 کے بعد آئی تھی. 9/11 کے بعد یورپ کو یا امریکہ کو دو چیلنجز کا سامنا تھا، مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی فنڈامنٹلزم اور افغانستان کے اندر. انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جہاں پر جو بھی مین اسٹریم ہے اس کے خلاف بات کرو. تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر حنفیت مین اسٹریم نہیں ہے، تو آپ وہاں حنفیت کے تعلق سے کیا بھائی ہم حنفیت کو پروموٹ کرو اور حنبلیت کو، شافعیت کو، مالکیت کو، سب کو سائڈ لائن کر دو. جب آپ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے اور جو مین اسٹریم ان کے خلاف بات کریں گے تو لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آگے آپ دیکھیں، اسی وجہ سے اگلا صفحہ یہ ہے صوفیز اکارڈنگ ٹو رینڈ رپورٹ. انہوں نے آگے کہا ہے کہ انکریج دا پاپولیرٹی اینڈ ایکسپٹینس آف صوفیزم. کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو تصوف کے خلاف ہوں. دیکھیں رینڈ رپورٹ میں کیا لکھا ہے. صوفیز کون ہے؟ صوفیز آر ناٹ a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. ہم صوفیوں کو ماڈرنزم میں رکھتے ہیں. کیوں؟ Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. اب دیکھیں افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں صوفیت کو پروموٹ کرو. وہاں حنفیت کو پروموٹ نہیں کرنا، حنفیت تو سارے وہ تو مین اسٹریم میں ہے. وہاں کس کو کرنا ہے؟ صوفیت کو. اور صوفیت کون سی والی؟ پوئٹری، میوزک اور فلسفی کے ذریعے. بھائی طالبان کے رول میں ذرا کوئی وہاں میوزک چلا کر دکھائے، لیکن وہاں جو مارجنلائز طبقہ ہے یعنی جو بالکل اقلیت ہے وہاں ان کے حق میں بات کرو اکثریت کے خلاف تاکہ پھڈا ہو. اور مڈل ایسٹ میں چونکہ حنفی مارجنلائزڈ ہے اور مین اسٹریم جو ہے وہ حنبلی اور دیگر حضرات ہیں تو وہاں ان کے خلاف حنفیوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اگر آپ کو ٹریڈیشنلزم کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. اور انجینئر صاحب پاکستان میں بیٹھ کر جہاں مین اسٹریم میں حنفی ہیں وہاں دن رات حنفیوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ رینڈ رپورٹ کی وجہ سے. تو اگر کوئی آدمی مثلا سلفی اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اصول و ضابطہ ہے، اس کو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. آپ ہمارے موضوع میں داخل اس لیے ہیں چونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے آقا رینڈ کارپوریشن والے خوش ہو رہے ہیں. فائنلی یہ ہے اسی میں ایک چیپٹر ہے دا حدیث وارز. اس میں ہے کہ فائنلی ان ریسنٹ ایئرز سم movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. کچھ تبدیلی ہمیں موجودہ سالوں میں، حالیہ سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. کہ ہمیں کچھ انٹرسٹنگ کا کام دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ مسلم ممالک میں، اور وہ اس طریقے سے کہ جو اسکالرز ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے
यानी जोड़े हुए नहीं रखते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग इस्लामिक लॉज एंड इंटरप्रिटेशंस, वो इस्लामिक कवानीन को जो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग जो मुतनव्वे कवानीन पाए जाते हैं उनके साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से सिविल लॉ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और न्यू लुक एट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट, और जो कदीम जमाने से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं उन पर वो नजर सानी कर रहे हैं। इंजीनियर की पूरी डॉक्ट्रिन यही है, वो सारे वही मौजूआत उठाते हैं कि जिन मौजूआत के ऊपर पहले से गुफ्तगू होती चली आ रही है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम न्यू लुक दे रहे हैं। तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं, इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world। भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है। अब आगे आप देखें कि कैसे न सिर्फ ये कि रिवायत के ऊपर हमला है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों पर और आपके कारनामों पर भी उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिससे किसी भी एक आम आदमी के जहन में शक व शुबा हो सकता है और वेस्ट की जो तकद्दुस है वो उसके जहन में कायम हो जाएगा। आप इस वीडियो को जरा सुने। बिल्कुल ऐसे आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते उसमें से। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती, फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म। ये लिबरलिज्म का एक बाकायदा उसमें एक चैप्टर है प्रेजेंटिज्म, कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेहतरीन दौर है। खैरुल कुरून ये है, खैरुल कुरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते तो मामला डिफरेंट होते, यानी उस वक्त तो कबायली दौर था, तो हमारे जो इस्लामिक लॉ में या सुन्नत में कुरान में जो बातें आ गई हैं वो जरा कबायली निजाम से ज्यादा अलाइन करती हैं। जो मॉडर्न दौर है हमारे इस दौर से वो बातें अलाइन नहीं करती हैं। भाई अगर ये मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर दुनिया में मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं पाए जाते। के बाद जिस तरह यूएनओ बनी और दुनिया में कंट्रीज बन गए और एम्पायर्स खत्म हुई, दुनिया रहने के काबिल हो गई है, वरना तो हर वक्त जंगो जिदाल के सिलसिला रहता। वो जो लाइनें जी दुनिया में हर वक्त जंगो जिदाल का ही सिलसिला था। मतलब यानी गज्जा के ऊपर जो हमला हुआ था वो तो पिछली सदी में हुआ था, आजकल तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो अफगानिस्तान पर किसी ने बम गिराया, ना इराक में कुछ हुआ, जंगे तो हो ही नहीं गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर। ये सब तो 500 साल पहले हो रहा था। मुझे तो ऐसा ही लगता है इस बात से। वो ड्रॉ करके चले गए, वो आप उसको सही समझते? जी मैं समझता हूँ दुनिया में सुकून आ गया, उसकी वजह से सुकून आ गया। जी सुकून आ गया। देखें इंसान लर्न, इसने सवाल किया एंकर ने कि जो लोग लाइनें ड्रॉ करके चले गए, यानी जो नेशन स्टेट्स बन गए, उसकी वजह से दुनिया में सुकून आ गया। कहना हाँ बहुत सुकून आ गया। तो जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, तो जो आदमी नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, प्रेजेंटिज्म को सपोर्ट करे, लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, वो अगर मॉडर्निस्ट नहीं है, सेक्युलरिस्ट नहीं है, तो फिर कौन है दुनिया में? लेकिन कई जगह यही बातें डॉक्टर इकबाल करें ना तो ये लोग कहते हैं माशाल्लाह क्या बात फरमा दी। तो अच्छा, डॉक्टर इकबाल ने, मैं नहीं समझता कि आखिर वक्त तक के इस बात पर कायम होंगे कि जी जमहूरियत जो है वो दुनिया में बेहतरीन निजाम हुकूमत है। और अगर है तो भाई ऐसे शेर के ऊपर 10 लाते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्ल मार्क्स की टीचिंग के बारे में इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरह ही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। फिर अवाम इस एतबार से मुजरिम है कि वो खुद तालीम हासिल नहीं करती, इल्म हासिल नहीं करती, एजुकेट नहीं होती, और उसकी वजह से बाकी ये जो मॉडर्न एज में मैं यानी क्रेडिट दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने दोबारा से ये आवाज बुलंद की है। और आज तो लोग मिसालें देते हैं, कार्ल मार्क्स की देते हैं या हैगल की देते हैं या बाकी लोगों की, लेनिन की देते हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो आवाज वो बुलंद कर रहे थे, अगर आप
अहादीस पढ़ना शुरू करें जी और उसमें जो पिसे हुए तबके के जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उनके लिए जो रूल्स बताए हैं उनको जिस तरीके से आपने लेके चलना है, तो आपको लगेगा ये कॉपी किए मैं। ये फितरत की बात है। मैं ये समझता हूँ इंसानियत ने ठोकरें खा के वो सारी चीजें सीख ली हैं, इवॉल्व हो गई हैं, ठोकरें खा के जो अंबिया की तालीमात में मौजूद थी, लेकिन वो अंबिया के मानने वाले खुद ही उस पर सांप बन के बैठे और उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचने दी। और उसके पीछे एम्पायर्स थी। एम्पायर कब चाहेंगी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो? देखें, एम्पायर्स इतनी खतरनाक है कि जी हाँ, तो कार्ल मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि इनकी बातें वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। इन्होंने उनको रीडिस्कवर कर लिया। कार्ल मार्क्स वही जो कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दिमाग को माउफ करने के लिए ड्रग लेनी है तो रिलीजन ले लो, ये कार्ल मार्क्स कहता है ना। तो उसके बाद वो एक और जगह कहता है कि मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, कि लोग बनाते हैं मजहब, मजहब लोगों को नहीं बनाता है। तो ये अंबिया की तालीम है। ऐसा शख्स जो मजहब का इतना कट्टर मुखालिफ हो, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी उनकी तालीम तो ऐसी है जैसे कि अंबिया की तालीम। क्यों? चूंकि सामने डॉक्टर तैमूर लाल बैठा हुआ है जो कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा पैरोकार है। उसके बाद पेज नंबर 62 रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में आगे आता है कि क्रिटिसाइज द फ्लॉज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म के अंदर जो कमियां है ना उसको खूब दबा के क्रिटिसाइज करो। और कैसे? शो द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट। आप दिखाएं कि ट्रेडिशनलिज्म और भुखमरी और जो दुनिया में तरक्की नहीं हो रही है, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, सबब और मुसब्बब का, इल्लत और मालूल का, कि जहां जहां ट्रेडिशनलिज्म होगा वहां वहां अंडर डेवलपमेंट होगा। as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress and prosperity। इसी तरीके से आप दिखाएं कि मॉडर्निटी से और जमहूरियत से क्या चीज आती है? प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया के अंदर कामयाबी आती है, तरक्की आती है। वो जो अभी मैंने वीडियो चलाई थी कि जिसमें ये कह रहे थे कि मौलवियों को वेटिकन में बिठा दो, तो वहां पर वो दुबई की मिसाल भी दे रहे थे कि देखो दुबई के अंदर कितनी ज्यादा प्रोग्रेस है, कितनी ज्यादा तरक्की है, वहां उन्होंने मौलवियों को वेटिकन में बिठा दिया। तो ये जो बात वहां लिखी हुई है, जो सबक वहां से पढ़ा दिया गया इंजीनियर को, एग्जैक्ट वही पूरी डॉक्ट्रिन के अंदर इंजीनियर के पाया जाता है। अब उसके बाद उन्होंने उस नैरेटिव को सपोर्ट कैसे किया, ये देखिए एक वीडियो है कि जिसको इंजीनियर ने खुद अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर शेयर किया है, व्हाई मुस्लिम्स फेल्ड। ये बता दिया गया कि आप इसलिए फेल हुए क्योंकि आप रिवायत के साथ खड़े हुए, आपने जिद्दत पसंदी को अपने यहां आने नहीं दिया। इसी तरीके से इंजीनियर ने ये बहुत हमारे कैसर भाई ने भी इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था और बड़े अच्छे तरीके से पेश किया था उस्मा रूमी जैसी खातून को, कि जो एक मॉडर्निस्ट है, जिसके मॉडर्निस्ट होने में कोई शक नहीं है, उसकी वीडियो को न सिर्फ ये कि शेयर किया बल्कि बार बार उसको सपोर्ट किया। आगे पेज नंबर 63 पे, सपोर्ट द मॉडर्निस्ट एंड मेन स्ट्रीम सेक्युलरिस्ट फर्स्ट। कैसे सपोर्ट किया जाए? इनकरेज देम टू राइट फॉर मैस ऑडियंस एंड यूथ, नौजवानों के लिए लिखवाओ इनसे। गिविंग देम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म दो। ये सारे तरीके। अच्छा, और इसमें देखें पोजिशनिंग मॉडर्निज्म एज ए काउंटर कल्चर ऑप्शन फॉर डिसअफेक्टेड इस्लामिक यूथ। वो मुस्लिम नौजवान जो उलमा से मुतमईन नहीं है, उनको मॉडर्निज्म एक काउंटर कल्चर के तौर पर दो कि ये भी एक ऑप्शन है, इसको इख्तियार करो। ये सारी की सारी जो तजावीज हैं उसी रिपोर्ट में दी गई हैं। लिहाजा हमारे तैमूर लाल साहब, तैमूर रहमान के हैं, तैमूर लाल के हैं, मैंने उनको दावत दी कि भाई मुझसे बात कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान को खतरा है, मैं आपसे बात करूंगा आप तो मेरे ऊपर कत्ल के फतवे लगा देंगे। हालांकि ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, मेरे मनहज के खिलाफ है, और मेरी किसी भी वीडियो में कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी के ऊपर ये कहा होगा इसको मार दो, इसको पीट दो। मुसलमानों के सियासी और इस्लामी खिलाफत के जवाल की असल वजह क्या है, इसको बुनियाद बनाकर इंजीनियर मिर्जा ने अपने करियर की बुनियाद रखी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी सियासी निजाम को मजमूई तौर पर चैलेंज करने वाले अफराद जैसे तैमूर लाल वगैरह पर वीडियोस बनाने के बजाय वो अपने पैरोकारों को उसकी वीडियोस देखने की तरगीब देते हैं। तो ये तैमूर लाल साहब एक पक्के सेक्युलरिस्ट हैं। हाँ, पाकिस्तान में रहने की वजह से अभी तक खुलकर ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं मुसलमान नहीं हूं। अल्लाह आलम, मैं किसी को मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं तैमूर लाल साहब आपकी, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आप कम्युनिस्ट तो है, ये बात तो है, आप कॉमरेड तो हैं। तो अब हमारे इंजीनियर साहब तैमूर लाल साहब के बारे में क्या कहते हैं, और नार्सिज्म की इंतहा देखिए जरा। यानी एजाब,
इजाब बिनफ्सी, खुद परस्ती, खुद नुमाई इसको कितने अल्फाज कहूं, सुनिए। और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? आप हमारी वीडियो से सीख लें। हमारी बाकी वीडियो से अगर प्रॉपरली इन सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को, तो मेरी नजर में तो उर्दू जुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से इन चीजों को समझाया है। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि नॉलेज की हद तक आप जरूर यानी उनकी वीडियोस देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी। नॉलेज की हद तक समझने के लिए इन मौजूआत को, इनकी वीडियोस जरूर देखें। किसको सपोर्ट किया जा रहा है? यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रेडिशनलिस्ट हो और वो तैमूर लाल को प्रमोट कर दे। मुमकिन नहीं है, क्योंकि तैमूर लाल तो कॉमरेड अपने आप को कहता है। तो ये मुमकिन तो उसी वक्त है जबकि एक मॉडर्निस्ट या सेक्युलरिस्ट दूसरे सेक्युलरिस्ट को प्रमोट करेगा। तो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में इंजीनियर साहब ने हेजिटेशन एक मिनट नहीं किया। यही वजह है कि जो इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं या जो अफराद हैं, इस्लामोफोब्स हैं, मसलन वो कादियानी भी हम उनको उसी लिस्ट में रखते हैं, या ये मुर्तद हैं, उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर इंजीनियर साहब अटैक करते हैं। अदनान रशीद के ताल्लुक से इंजीनियर साहब ने क्या कहा था? इंजीनियर अदनान रशीद साहब का मुनाजरा हुआ कादियानियों से, सुन लीजिए क्या कहते हैं। सबको पता है, लेकिन एक कोई मुसलमानों के स्पीकर हैं, अदनान रशीद लाल उनका नाम है। हमको उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। अब गलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफर मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नीयत से कह रहे हैं। वो कादियानी उन्हें जो है वो पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह के बंदो, क्यों पूछेंगे? कुफर की कोई तावील नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से उनके साथ कोई एक और भी कोई मौलाना था, पता नहीं वो देवबंदी था। अब ये लोग फिर जाके जलील होते हैं इस तरह के मुनाजरों में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों, जाके ये लोग कादियानियों से जलील होते हैं। हालांकि उन मुनाजरों में अदनान रशीद ने कादियानियों को की मंजी ठोक दी थी। इसके बावजूद जाहिर है कि इंजीनियर को वो नैरेटिव सपोर्ट करना है ना कि जो ऊपर से दिया गया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्हाद के मैदान में हम एक अरसे से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या उन्होंने अटैक किया, इसको भी सुन लीजिए। इस्लाम मशकूक है क्योंकि आप लोग जिन लोगों के फ्रंट मैन है, ठीक है, वो लोग तो ये रखते हैं अकायद। अब एक मुफ्ती बैठा है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है। भाई तू खुद जो बंदी है, भाई जो बंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, अपना इस्लाम। जी, तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। ये गुफ्तगू, ये बात इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से उवैस इकबाल की डिबेट के बाद की कि भाई तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, तुम्हारा तो अपना इस्लाम मशकूक है। भाई इस्लाम मशकूक होने का क्या मतलब है? तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? तुम काफिर हो। तो इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से कुफर का फतवा दिया इसलिए कि मैंने एक मुल्हिद को डिबेट में पिछाड़ दिया। तो ये एजेंडा, चूंकि एक वो मुनाजरा बड़ा मशहूर हुआ, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, तो जाहिर है कि भाई जो रैंड कारपोरेशन वाले हैं वो हरकत में आए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रेडिशनलिस्ट आगे जा रहे हैं, जरा पीछे लाओ। फिर मैं पैलेस्टाइन इसराइल वैल्यूज के ऊपर अभी बात नहीं, इश्यूज के ऊपर बात नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से नुपुर शर्मा का केस हुआ। यहां पर ये एक अहम चीज है कि कादियानियत का फ्रंटमैन, आप देखें कि किस तरीके से कादियानियों के ताल्लुक से इंजीनियर मिर्जा ने खुशी का इजहार किया। अगर आवाज ना आई हो, क्योंकि इसमें आवाज कम है, कि अल्लाह ने जलील कर दिया इन लोगों को कादियानियों के मुकाबले में, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो रहे हैं। 3 दिन के अंदर सारे मौलवियों की वीडियो रिकॉर्ड करवा के चढ़ा दी कि ये लो जो तुम झूठ बोल रहे हो। अब मुझे बताओ इन लोगों का कोई लेवल है कि ये डिबेट करेंगे कादियानियों से? मेरा तो जी, तो खुशी का इजहार। उसके बाद ये एक इंजीनियर साहब के चेले हैं इनकी भी सुन लीजिए। इससे मैं साबित करना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ रैंड कॉर्पोरेशन का फ्रंटमैन नहीं है, ये कादियानियों का भी फ्रंटमैन है। बात ये है कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बिया हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट, बस एक वीडियो, किसी चीज से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ नहीं करना, मतलब नहीं था। A few moments later क्लिप करता जाए क्या अहले किताब का क्या ज़बिया? हाँ, सूरतुल माइदा में अहले किताब की औरतें भी लाल है, ज़बिया भी लाल है, अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा। तो अहले किताब का अगर ज़बिया लाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी लाल ही होगा। कादियानियों का ज़बिया भी हलाल होगा। चेला कह रहा है कि नहीं, एक वीडियो दिखाओ
आ गई. अब उसके बाद देखें, ये बड़ा शॉकिंग इंकिशाफ खुद इंजीनियर साहब करते हैं. उस वक्त बड़े बड़े उलमा निकले थे ना अहले हदीस की तरफ से, सनाउल्लाह अमृतसरी, और अहले सुन्नत की तरफ से पीर मेरे अली शाह साहब सामने आए, बड़े बड़े उलमा सामने आए. अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है. मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ. मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसके एतबार से तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ. मुनाजरा होना था काजी सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ और गुलाम अहमद कादियानी के. तो कादियानियों ने मुझे जो मवाद फराम किया, इंजीनियर साहब को मवाद जो फराम कादियानियों ने किया है, उससे तो ये पता चल रहा है कि मुसलमान भागे हैं, कादियानी नहीं भागे हैं. मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ. तो भाई आपको तो मवाद आपके एतबार से कादियानी मवाद फराम कर रहे हैं. तो एक तरफ से रैंड कॉर्पोरेशन मवाद फराम कर रहा है, दूसरी तरफ से कादियानी मवाद फराम कर रहे हैं, तो फिर आप तो कादियानियों के फ्रंटमैन हुए ना. हारिस सुल्तान को कौन नहीं जानता? जो शख्स इल्हाद के ताल्लुक से दिलचस्पी रखता है वो हारिस सुल्तान को जानता है. उसकी वीडियोस बहुत मशहूर है. नीचे जाकर उसकी वीडियो पर यह कमेंट करना कि मे अल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड आवर कंट्री पाकिस्तान फ्रॉम ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज. ये नहीं कहेंगे उम्मत की हिफाजत, नेशन की हिफाजत, नेशनलिज्म. उसके बाद मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स हिज पाथ ऑफ ट्रूथ, आमीन. ट्रूथ लवर्स को सलाम. तो अब हारिस सुल्तान को सलाम कहने की तो हिम्मत अगर करेंगे तो जाहिर बात है कि अपने स्टूडेंट ही फिर गायब हो जाएंगे. ट्रूथ लवर्स को सलाम. तो भाई आप ऐसे ऐसे लोगों की वॉल पर जाकर कमेंट करते हैं, एलजीबीटी एक्टिविस्ट को इंडोर्समेंट करते हैं. सारे कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तस्वीर में दिखा नहीं सकता, ये इतनी गैर मुहज्जब है. और ये महरूब मोइज आवान जो पाकिस्तान में मशहूर एलजीबीटी एक्टिविस्ट है, जो होमोफोबिया के खिलाफ, होमोफोबिया किसको कहते हैं, यानी हम जिस परस्ती के खिलाफ जिन लोगों को जो लोग आवाज उठाते हैं उनको कहा जाता है कि ये होमोफोबिक है. तो ये जो भी है, बंदा बंदी है, ये उन लोगों के खिलाफ बोलती है. ये वहां की एलजीबीटी एक्टिविस्ट है. इंजीनियर साहब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं. तो भाई ये जो पूरा फंडा है ये क्या है? इंजीनियर मिर्जा जैसे, खुलासा ये है, इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग अहले रिवायत उलमा जैसे इमाम गजाली और इब्न तैमिया जैसी शख्सियत पर तनकीद करते हैं, उन्होंने तनकीद भी करते हैं, उन्होंने गुमराह करार देने की कोशिश करते हैं, उनके इल्मी कारनामों को अहम नहीं समझते बल्कि उन्हें हल्का करके पेश करते हैं. अहले रिवायत उलमा की तसानीफ जो इस्लाम की फहम को तसलसल से बयान करती है और असर हाजिर के मसाइल को इस्लामी तालीमात के मुताबिक हल करने का फ्रेमवर्क देती है, को इंजीनियर जैसे लोग रद्द करके रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको मानने वाले नौजवान उनसे इस्तेफादा करने से परहेज करते हैं. यह रवैया न सिर्फ इस्लामी विरासत को मस्क करता है बल्कि नौजवान मुसलमानों को अखलाकियात, सियासियात और रूहानियत पर अहम मालूमात हासिल करने से भी महरूम कर देता है. इस तरह के रवैये को इस तरह का रवैया इस्लामी फिक्र को बांटने का काम करता है, इल्मी रिवायत पर एतमाद को कमजोर करता है और उन उसूलों से महरूम कर देता है जो मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जरूरी है. हमारे नौजवानों को अपने इल्मी रिवायत और मीरास से जुड़ना अशद जरूरी है ताकि एतमाद और इल्म के साथ अपने मौकिफ को नक्ल व अकल की रोशनी में मजबूती के साथ पेश कर सकें. ये हमारी पहला सेगमेंट है और ये पहला सेगमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ. मैं अब